Now, question number 6, exercise 1.2, NCERT chapter 1, knowing our numbers, class 6, question number 7. It is given a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? Now, total money merchant had rupees 78,592, and now she ordered for purchasing 40 radio sets. Order 40 radio sets, each cost of rupees 1200. Means one cost of one radio is rupees 1200. So cost of 40 radio sets will be सिंपली मल्टीप्लाई, है ना, टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा. उसके बाद फिर ये 40 रेडियो का टोटल कॉस्ट निकल आएगा. वी विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स एंड टोटल मनी, वी नो टोटल मनी ऑफ मर्चेंट, दिस इज गिवन. सो आफ्टर getting the cost of 40 radio sets, we will get the remaining money of merchant. So solution to solve the problem. Solution: total money of merchant total money of merchant RS rupees 78,592. Given given cost of one radio set, cost of one radio set is Rs 1200. It's given 1200. Therefore, total cost of 40 रेडियो सेट, इसके लिए क्या होगा कि टोटल वन, वी नो द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो, then the cost of 40 radio set will be simply, it will be multiplied by 40. We know the value of 1, and then to get the cost of 40, we have to multiply 200 into 40. तो cost of 40 radio set, वी नो एक की हम जानते हैं, तो 40 की कितनी होगी, जाहिर सी बात है सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1200 मल्टीप्लाइड बाई 40, 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 2 से 8 और 1 से 4. Zero 0 0 4 8 48,000. We got the, therefore total cost of 40 radio got 48,000. Now how much money will remain with her after the purchase? अब उसने खरीदारी कितनी की, टोटल परचेज कितनी की, 48,000 की, और टोटल मनी उसके पास कितनी है, 78,000
78,592 total money. तो remaining money of merchant क्या होगी? Remaining money with merchant, इसलिए क्या करना पड़ेगा? 78,592 subtract 48,000, 2,950,743, 30,592. Therefore remaining money with merchant is rupees 30592. Is the we got the answer. Question number 8. A student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. Multiplied by 65. One number is given, 7236 is given. It's not multiplied by 65 instead of multiplying by 56. मतलब उसे 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 65 से कर दिया. तो ये कह रहा है कि जो 65 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर कितना ज़्यादा है आफ्टर करेक्ट आंसर इससे मिलेगा, है ना. और मल्टीप्लाई 65 से किया. तो फर्स्ट केस स्टूडेंट when फर्स्ट केस क्या है कि when student multiplied by 7236 by 65 क्या हो गया, 7236 को उसने पहले 65 से कर दिया, जो कि करना था हमें 56 से. तो पहले हम 65 से मल्टीप्लाई निकाल लेंगे. वी विल गेट द रिजल्ट बाय मल्टीप्लाइंग 65. 5 6 33, 5 6 15, 16 7 18, 8 carry 1, 5 10, 1 11, carry 1, 5 7 35, 36, 3 6 1 0, 6 6 36, 3 6 18, 19 20 21 21 2, 6 12 13 14 14 4, carry 1, 6 7 42, 1 43. We got the answer 0 at 6 14, carry 1 1 1 3, 6 4 10 का 0, carry 1 7 4 7 0 3 4 0. Zero at 6 14, 4 carry 1 3 10, carry 1 4 7 0 3 4 0. फर्स्ट केस में उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 470
We got the result 470,340 फर्स्ट केस में। सेकेंड केस क्या होगा, when multiplied 7236 by 56, so we will multiply by 56. 7236 multiplied by 56, 6 is 36, 3 is 18, 21, 2, 14, 4, carry 1, 6 1 is 42, 43, 4 3 4 1 6, 5 6 is 30, 0 carry 3, 5 3 15, 16 17 18, 8 carry 1, 10 1 11, carry 1, 5 7 is 35, 36, 3 6 180, 6 1 12, 5 10 40 5216. We got the answer 405216। सेकंड केस में ये हमें मिल गया। फर्स्ट केस में 470340 है ही है, तो करेक्ट हाउ मच क्वेश्चन इज by how much was his answer greater than correct answer. Therefore correct answer greater by क्या करेंगे, जो फर्स्ट केस में है हमें मिला था, फर्स्ट केस में ये था 473040470 470,340, और सेकेंड केस में हमें मिला 405216। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। करेक्ट आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। जब 65 से कर दिया था, करना था 56 से, तो 56 से हमें मिल गया सेकेंड केस में। पहले केस में उसने 65 से किया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 47034 और 405216, इसको माइनस कर देंगे। 470,340 subtract 405216, 10 में से 6 गया 4, बन गया 2, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 5 गया 5, 6 5 1 2 4। करेक्ट आंसर ग्रेटर बाय, therefore correct answer greater by 65124। Question number 9. It is given to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter. Cloth is needed.
out of 40 meter cloth how many shirts can be stitched and how much cloth will remain. So ये दिया हुआ है कि एक शर्ट बनाने में कितना लगता है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ, और टोटल क्लॉथ है उसके पास 40 मीटर. ये कह रहा है कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, 40 मीटर में कितनी शर्ट्स बन जाएंगी. तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच इन 40 मीटर. टोटल क्लॉथ है 40 मीटर क्लॉथ, और एक शर्ट में लगता है सिलने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. तो हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट द हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच इन 40 मीटर क्लॉथ, और टोटल पहले निकाल लेंगे. उसके बाद जो बचेगा वो उसके पास कपड़ा बचेगा. तो क्या है कि सॉल्यूशन ये है, cloth required to stitch one shirt at 2 meter 15 centimeter. So we will convert meter into centimeter, है ना. और यहाँ पे मीटर है, इसको 40 मीटर टोटल क्लॉथ दिया हुआ है, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे. दोनों को सेंटीमीटर में कर लेते हैं. तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर. देयरफॉर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा. इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर. तो 2 इंटू 100 प्लस 15 सेंटीमीटर. 200 प्लस 15 ये सेंटीमीटर में आ जाएगा. टू 215 centimeter required. So one shirt needed cloth 215 centimeter. Now total cloth is 40 मीटर. इस 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में कर लेंगे. 40 इंटू 100 सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 40 इंटू 100 4000 सेंटीमीटर. टोटल क्लॉथ 4000 सेंटीमीटर है. नाउ नंबर ऑफ शर्ट्स. टोटल क्लॉथ ये है. टोटल क्लॉथ कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर है, और 1 शर्ट सिलने में 215 सेंटीमीटर लगता है. 215 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए हम टोटल क्लॉथ को एक शर्ट से डिवाइड कर देंगे. टोटल क्लॉथ को एक शर्ट से डिवाइड कर देंगे. Therefore number of shirts निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना है 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर. डिवाइडेड बाई 215 ये 1 टाइम जाएगा.
215 से 5 के 5, 9 में से 1 गया 8, वन, और ये 0 आ गया, ये टोटल 18, फिर 8 से चला जाएगा ये, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 44, 8 1 ज़ा 8, 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 8 2 16 17, 0 3 130. Now here 130 is remainder. ठीक है, we got the 18 here. So answer 18. Number of shirts can be stitched. 18 shirts can be stitched. 18 shirts, क्योंकि 130 रह गया. अब ये रिमाइंडर छोटा है और क्वेश्चन बड़ा है. ठीक है सर, तो ये हो गया 130, रिमाइंडर बच गया, तो 18 shirts. Therefore total number of shirts can be stitched. Total number of shirts 18. अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट में है, तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन कितने बन सकते थे? 18 बन सकते थे. 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड इन 40 मीटर क्लॉथ. अब ये कह रहा है कि अब कितना बचा? अब 18 शर्ट्स बन गए. ठीक है जी, और 18 शर्ट्स तो हमारे बन गए, और एक शर्ट की हमें मालूम है इतने सेंटीमीटर लगते हैं. 18 शर्ट्स हैं, तो कितना कपड़ा बचेगा? तो पहले तो हम 18 शर्ट्स में कितना कपड़ा लगा ये निकालेंगे, है ना, और फिर टोटल क्लॉथ से उसको माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा. तो क्लॉथ नीडेड फॉर 18 शर्ट्स इज इक्वल टू 18 शर्ट्स, और एक का मैं मालूम ही है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लगता है, तो 215 सेंटीमीटर से वन शर्ट में जो क्लॉथ लगता है 215 लगता है. ठीक है, तो 18 शर्ट में कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. 215 मल्टीप्लाइड बाई 18, 8 5 40, 4, 8 1 8, 9 10 11 12 का 2 कैरी 1 17, 1 5 5, 1 1 1, 1 2 2, 0 10 5 2 7 8 38 3870 3870. सो 18 शर्ट में कितना लगा? 3870 सेंटीमीटर लगा. ठीक है, 3870 सेंटीमीटर लगा. तो टोटल 18 सेट में इतना लगा कपड़ा, है ना, और टोटल क्लॉथ हमें दिया हुआ है 4000 सेंटीमीटर. सो कितना बच गया रिमेनिंग क्लॉथ? रिमेनिंग क्लॉथ है, therefore remaining cloth total is given 4000 सेंटीमीटर, है ना, माइनस 387. 18 शर्ट्स में इतना लगा 3870 सेंटीमीटर. तो इसको निकाल लेंगे हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं. 400 4000 3870 0 3 2 1 130 सेंटीमीटर.
मीटर बच गया। 130 सेंटीमीटर टोटल क्लोथ, रिमेनिंग क्लोथ कितना है 130 सेंटीमीटर, और इसे अगर 1000 से 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, क्योंकि सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम 130 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, मीन्स 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर। आंसर रिमेनिंग क्लोथ। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1.2 NCERT चैप्टर 1 knowing our numbers, class 6. Question is given, a medicine is packed in a boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in van which cannot carry beyond 800 kg? This given weight of one box is given 4 kg 500 gram, और टोटल जो बॉक्स होंगे ये कह रहा है कि 800 kg से ज़्यादा वो वैन ले नहीं जा सकती है। तो मतलब हम एक बॉक्स का वेट हमें मालूम है और टोटल 800 kg ले जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल आएंगे। यही पूछ रहा, हाउ मेनी ईच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन having which can carry 800 kg load, which can carry 800 kg load. So we know the weight of one box as क्या given क्या है कि weight of one box, weight of one box is equal to 4 kg 500 ग्राम। 1 kg में 1 kg, since 1 kg is equal to what है 1000 ग्राम, therefore 4 kg plus 500 gram, 4 into 1000 gram plus 500 gram. We are converting kg into grams. So weight of one box 4000 gram plus 500 ग्राम। टोटल वेट ऑफ वन बॉक्स कितना हो गया 4500 ग्राम। We got the weight of one box, weight of one box we got 100 gram. Total load which can be carried by van, total boxes can be total load of van can carry is equal to given 800 kg। इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे। 800 इंटू 1 kg कितना है 1000 ग्राम, ये ग्राम में टोटल आ जाएगा तो 100 ग्राम में आएगा।
total load which can carry by van is 8 1 10 100 1000 10,000 lakh 8 lakh grams which can carry by van. Total load 8 lakh grams can be carried by van. So number of boxes अब कितने इसमें एक बॉक्स का हमें मालूम है, वन बॉक्स का मालूम है हमें कितना वेट ऑफ वन बॉक्स इज गिवन, मतलब मैंने दिया था जो कि मैंने ग्राम में बदल के निकाल लिया 4500 ग्राम है ना। और टोटल लोड जो कैरी कर सकती है 8 लाख ग्राम 8 लाख ग्राम कैन कैरी वैन कैन कैरी 8 लाख ग्राम्स। So number of boxes can be loaded in, therefore number of boxes can be loaded in van। क्या हो जाएगा, टोटल वेट जो कि ले जा सकती है वैन कितनी है 8 lakhs, इतने ग्राम ले जा सकती है। और एक टोटल तो ये ले जा सकती है और एक बॉक्स का हमें मालूम है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे है ना। टोटल को एक से टोटल को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल आएंगे 8 ग्राम। तो क्या होगा सिस्टम में, क्या होगा कि हमें 8 lakhs divided by weight of one box 4500 grams। So now we will divide 4500 वन टाइम जाएगा 4500 5 और ये 0 आ जाएगा। एक टाइम चला जाएगा। सेवन टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा। 7 0 0 7 0 0 7 5 35 3 7 4 28 29 30 31 7 0 0 7 7 0 0 7 5 35 3 7 4 28 29 30 31 0 0 5 इसमें गया 3 35, फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम फिर ये चला जाएगा 3500 है, फिर 7 से ही जाएगा। 7 से कितना है 31500 0 0 5। अब ये रिमाइंडर है 500 ये कम आ गया, तो टोटल ये 177 बॉक्सेस। Therefore answer is total number of boxes which can be loaded in van 177, the answer. Question number 11 is given
distance between the school and a student house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. क्या निकालना है कि मतलब ये हाउस, ये स्कूल एंड स्टूडेंट हाउसेस, ये स्कूल हो गया, स्कूल, ठीक है, और ये है हाउस। इनके बीच की दूरी जो बता रहे डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, ठीक है। तो एक तरफ से एक तरफ की डिस्टेंस है इतनी, है ना। और तो ये स्कूल जाती भी, घर से स्कूल जाती भी है, ये जाती भी है, स्कूल गई, फिर यहाँ से स्कूल से वापस भी गई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 डे क्या है कि दोनों को ऐड कर देंगे। एक डिस्टेंस घर से जाना और फिर घर से वापस आना, तो 1 किलोमीटर, एक तरफ की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 75 मीटर है, तो दोनों तरफ की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 डे, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट इन 1 डे। 1 डे क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसको ऐड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 टाइम जाना दूसरे में आना, इसको ऐड कर दें 2 बार या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक बार गई, एक बार घर से आई स्कूल, स्कूल से फिर घर गई, तो दोनों को ऐड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 0 कैरी 1, 2 7 14 15 5 कैरी 1, 2 16 17 7 कैरी 1, 2 1 2 3 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो ये 1 डे में डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट 1 डे हमें निकला है। वन डे की डिस्टेंस क्या है, हमने निकाल ली है 3 किलोमीटर 750 मीटर। देयरफॉर सिंस 1 डे डिस्टेंस इक्वल टू इतना, तो देयरफॉर 6 डे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, किलोमीटर 750 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 6। जाहिर सी बात है, 1 डे की मालूम है तो 6 डे की मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 0 0, 6 0 6 5 30 का 0, कैरी 3, 6 7 42, 3 45, 45 का 5, कैरी 4, 6 18 19 20 21 22 22। ये 20, ये किलोमीटर है और ये मीटर है। 22 किलोमीटर 500 मीटर, इट इज द आंसर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 days 22 किलोमीटर 500 मीटर। Question number 12, exercise 1.2, chapter 1, NCERT, class 6, knowing our numbers, is given a vessel has 4 liters and 500 ml of curd, ठीक है। in how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled। क्या कह रहा है कि एक वेसल है
जिसमें 4 लीटर्स एंड 500 ml कर्ड है, दही है, ठीक है, 4 लीटर्स 500 ml कर्ड है। अब ये कह रहा है कि टोटल तो एक वेसल में टोटल दही भरा हुआ है जो कि 4 लीटर है और 500 ml कर्ड भरा हुआ है। 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड कंटेनिंग वेसल, ठीक है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। क्या कह रहा है कि ग्लास जो है, ग्लास में 25 ml आता है, एक गिलास में 25 ml कैपेसिटी कर्ड आ सकता है। तो कह रहा है कि कितने ग्लासेस उस वेसल से भर जाएंगे, ठीक है। तो हम वेसल, अब गिलास की वैल्यू जो है दी हुई है, कैपेसिटी ml में दी हुई 25 ml है, ठीक है। और ये टोटल वेसल कैपेसिटी कितनी, 4 लीटर 500 ml है। तो इसको हम ml में बदल लेंगे। तो सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम सॉल्व करने के लिए कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या है, कैपेसिटी ऑफ वेसल इज गिवन 4 लीटर प्लस 500 ml, ठीक है। अब जानते हैं कि 1 सिंस वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, वी नो दैट। देयरफॉर इसको हम बदल लेंगे 4 लीटर, इस लीटर की जगह ml, 1000 ml प्लस 500 ml, ठीक है, ओके। तो ये 4000 ml प्लस 500 ml, 4500 ml converted into ml. Capacity of vessel is converted into ml. कितने है, 4500 ml. Capacity of total vessel, total capacity of vessel is 4500 ml. Now it's given capacity of 1 glass. Capacity of 1 glass is given 25 ml as per question. 25 ml मतलब एक गिलास में 25 ml आता है और टोटल हमें मालूम है कि 4500 ml है टोटल वेसल में, 25 ml कर्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय वेसल। देयरफॉर नंबर ऑफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 ml हमें एक गिलास की मालूम है, कैपेसिटी 25 ml है और टोटल वेसल की कैपेसिटी 4500 ml है। तो हम 4500 ml को इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड निकल जाएगा, मतलब उस गिलास में कितने ग्लासेस भर जाएंगे उस वेसल से। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास गिवन और टोटल इज गिवन, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 4500 ml है और डिवाइडेड बाय 25 ml मीन्स 4500 डिवाइडेड बाय 25 1 जा 2 जा 50 हो जाएगा, 25 2 से 50 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा 25, 5 5 से 0, 4 2 से 2, 4 में से 2 और ये 0 उतार लिया, 25 8 से 200, 25 8 से 8 से 8 5 से 40, 4 8 16 17 18 19 20
17, 18, 19, 20, 20, 200. ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, ये ज़ीरो उतर जाएगा 180. नंबर ऑफ ग्लासेस, ये आंसर आ गया 180 ग्लासेस कैन पुट. तो ऐसे लिख जाएंगे, हम लिख देंगे नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड बाय वेसल बी फिल्ड is equal to the 180 glasses. ये आंसर आ गया.